کہ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو قیامت ڈھا دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر سے دھمکی۔ G7 اجلاس کے موقع پر امیر قطر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ صدر ٹرمپ نے کہا معاہدے کے تحت ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے، یہ معاہدہ ایٹمی ہتھیاروں کے سامنے دیوار ہے۔ امریکہ ایران میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا۔ اماراتی صدر سے ملاقات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امید ہے ایران کے ساتھ معاہدے کا دوسرا مرحلہ بھی جلد مکمل ہوگا۔ جمعے کو آبِ ہرمز مکمل طور پر کھول دی جائے گی۔ MOU میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر باضابطہ دستخط 19 جون کو جنیوا میں ہوں گے۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر قلیباف کریں گے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا واشنگٹن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جنگ بندی تمام محاذوں پر ہوگی۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ مفاہمتی یادداشت کی اہم شق ہے۔ تو لبنان پر اسرائیلی حملہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ لبنان پر اسرائیل کا حملہ اور قبضہ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا، کہا معاہدے کا ایک فریق امریکہ اور اسرائیل جبکہ دوسرا فریق ایران اور حزب اللہ ہے۔ لبنان اور حزب اللہ سے متعلق معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ پہلے مرحلے میں سب سے اہم مسئلہ جنگ کے خاتمے کا تھا۔ مذاکرات کے آخری مرحلے میں جوہری پروگرام اور پابندیوں پر بات ہوئی۔ ایک اور اہم معاملے کی بات کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں آج جو حالات ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں پاکستان کی جانب سے کبھی بھی زور زبردستی نہیں کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کشمیری عوام ہمیشہ پاکستان کے شانہ بشانہ رہے ہیں اور رہیں گے۔ افغانستان میں جون تک ہم نے 32,000 آپریشنز کیے ہیں۔ ان آپریشنز میں 1841 دہشت گرد مارے گئے۔ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف ایکشن میں سنجیدہ نہیں ہے۔ تو انتہائی اہم خبر، مقبوضہ کشمیر میں آج جو حالات ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان کی جانب سے کبھی بھی زور زبردستی نہیں کی گئی۔ ہمیشہ کشمیری عوام پاکستان کے شانہ بشانہ رہے ہیں اور آگے بھی رہیں گے۔ کشمیر اور پاکستان یکجان ہے۔ کشمیر میں حالات اس سے مختلف ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان کی قیادت نے 2 سال میں آزاد کشمیر میں جو مذاکرات ہوئے ہیں اور جو حالات ہوئے ہیں اس میں جو آپریشنز کیے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی سامنے آئی ہے۔ بھارت کا پاکستان کو دہشت گرد ریاست بنانے کا بیانیہ ناکام ہو چکا ہے۔ دنیا نے حقیقت جان لی ہے۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھاونی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ وادی کے لوگ اضطراب کا شکار ہیں لیکن کشمیر کا حل بھارت کے پاس نہیں ہے، اس لیے بھارت آزاد کشمیر میں آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں اہم پیش رفت۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان سے 4 نومنتخب آزاد اراکین کی ملاقات۔ چاروں آزاد اراکین کا IPP میں شمولیت کا اعلان۔ آزاد اراکین میں 2 کا تعلق گھانچے، ایک دیامیر اور ایک غزر سے ہے۔ GB 23 گھانچے سے انور علی اور GB 24 گھانچے سے اسد شفیق استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے۔ GB 15 دیامیر سے محمد دلپذیر اور GB 21 غزر سے امان علی بھی IPP کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی صدر عبدالعلیم خان نے شمولیت کرنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات محنت کریں۔ گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر اور سیاحت میں بہتری کی خاطر خواہ گنجائش موجود ہے۔ بہتری کے لیے صحت، تعلیم، IT اور روزگار کی فراہمی اہم شعبے ہوں گے۔ پنجاب اور وفاق کے بعد گلگت بلتستان میں IPP اپنا مثبت کردار ادا کرے گی۔ IPP میں شامل ہونے والوں کا مرکزی صدر عبدالعلیم خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی کی پہلی مرتبہ گلگت بلتستان اسمبلی میں نمائندگی خوش آئند ہوگی۔ محنت اور ایمانداری سے گلگت بلتستان کی ترقی میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اور اب بات پنجاب کے بجٹ کی، تو پنجاب کا 5,903 ارب سے زائد کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کے مطابق ترقیاتی بجٹ کا حجم 752 ارب روپے ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7%، پینشن میں 3.5% اضافہ ہوگا۔ تعلیم کے لیے 750، صحت کے لیے 500 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ مالی سال 2026-27 کے لیے مجموعی بڑی بجٹ کا حجم 5,903 ارب 46 کروڑ روپے تجویز کیا جا رہا ہے، جو کہ رواں مالی سال کے مقابلے میں
10.7% ज्यादा है। जारी अखराजात का तखमीना 1962 अरब 93 करोड़ रुपए, जो कि रवा माली साल के मुकाबले में 3.1% कम है, जिसकी अहम वजह हुकूमत की किफायतशारी है। अगले माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। अगले माली साल में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है, जिससे सूबे के पेंशन अखराजात 500 अरब 12 करोड़ होंगे। बल्दियाती इदारों के लिए 5.2% इजाफे के साथ 803 अरब 88 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। तालीम के शोबे में माली साल 2026-27 के लिए 750 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। तो पंजाब का 5,900 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,240 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए गए हैं। तालीम के लिए 750 अरब रुपए से जायद तजवीज़ किए गए हैं। सेहत के लिए 500 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। अमन व अमान के क़याम के लिए 252 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ज़राअत और लाइव स्टॉक के लिए 132 अरब से ज़ायद रखे गए हैं। साफ पानी और निकासी आब के लिए 507 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। विफाक से पंजाब को NFC अवार्ड के 4,390 अरब रुपए की मुंतकली का तखमीना है। सूबाई आमदन का तखमीना 1,209 अरब रुपए रखा गया है। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज़ है। हुकूमत पंजाब में पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया गया है। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब बजट को उम्मीद का बजट करार दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, विफाक को बड़ी रकम देने से फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन पूरी कोशिश है कि अवाम पर बोझ ना डाला जाए। अपने अवाम को अपने ही वसाइल से रिलीफ देंगे। हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जिसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल सेक्टर है। वो ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम बोझ जो है वो आवाम पे डालें। आप ये देखेंगे कि ये जो पूरा बजट है ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये पीपल सेंट्रिक है, ये क्लाइमेट कॉन्शियस है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सिद्ध के दिल से पंजाब के अवाम की खिदमत कर सकें। अब बात करेंगे बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान का बजट 1,200 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान शुएब नौशरवानी आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक तालीम, सेहत और अमन व अमान बजट की तरजीहात होंगी। अमन व अमान के लिए 100 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ है। तालीम के लिए 150 अरब रुपए से जायद मुख्तस होने का इम्कान है। शोबे सेहत के लिए 90 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए जाएंगे। विफाक तर्ज पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। तो आपको अपडेट करें, ये है बलूचिस्तान का बजट, जिससे मुतालिक हमने आपको बताया। तो पंजाब में होने वाली दहशतगर्दी का मरकज़ अफगानिस्तान है। एक और अहम खबर है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, सबको मिलकर दहशतगर्दी से निमटना होगा। अमरीका ईरान अमन मुआहिदा पाकिस्तान की तारीखी सिफारती कामयाबी है। ईरान से मुआशी पाबंदियाँ उठने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान और खुसूसन बलूचिस्तान को होगा। आज़ाद कश्मीर में जारी खूनी खेल के ताने बाने बरतानिया में बैठे चंद अफराद और भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी चाहे वो बलूचिस्तान में हो रही है या KP में हो रही, दोनों का ओरिजिन अफगानिस्तान। ये मसला किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक सूबे का नहीं है, हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। इसका हल होना चाहिए। ईरान के साथ जो हमारे एक तारीखी ताल्लुकात हैं, उनमें एक नहायत खुशगवार डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन पे सैंक्शन जो है रिलैक्स हो रही हैं और सबसे बड़ा बेनिफिशरी उसका बलूचिस्तान होगा। डिप्लोमेटिक विक्ट्री में पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है। ये लम्हात जो है कौमों की तारीख में सदियों के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर, वहाँ पे जो खेल खेला जा रहा है उसके ताने बाने या तो बरतानिया में बैठ के वो लोग जिनके पास बरतानवी शहरियत है उनके हाथों में है, और या उनकी मार्फत जो है हिंदुस्तान के हाथों। किसने वोट देना है, किसने नहीं देना, नई असेंबली जब बनेगी वो डिसाइड कर लें। मॉब को जो है इख्तियार नहीं दिया जा सकता। हमारी इकोनॉमी ICU से निकल चुकी है। इंशाल्लाह 1-2 साल में 6.7 या 7% जो है उस ग्रोथ रेट के ऊपर हम पहुँचेंगे।
वेलकम बैक। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी कहते हैं कि हमने हुकूमत के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे, लेकिन अस्मा बुखारी ने इसे पॉइंट स्कोरिंग करार दिया। अस्मा बुखारी मुल्तान आकर देखें कि कोई ग्रीन बस चल रही है तो मैं मुआफ़ी मांग लूँगा। मज़ीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा मायरा हाशमी से, जो इस वक्त अली हैदर गिलानी के हमरा मौजूद हैं। जी मायरा। बिल्कुल, पंजाब के नए साल का माली बजट जो है वो पेश हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं, चूँकि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए। हमारे जो मेंबर्स हैं जिनको मैंडेट मिला है, जनूबी पंजाब के लोगों का असल मैंडेट मिला है, और वो फॉर्म 45 के MPs हैं पीपल्स पार्टी के। ये उस्मा बुखारी साहबा को मैं बताना चाहता हूँ। उनका बयान मैं सुन रहा था कि शायद हम को तासुब की ऐनक लगा के बैठे हैं। बिल्कुल कतन ये बात नहीं है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। मैंने तो सिर्फ इतनी बात की थी कि जो ग्रीन बसेज हैं जिसके लिए 100 अरब रुपया इस बजट में रखा है और पिछले बजट में कई सैकड़ों अरब जा चुके हैं, उसमें से एक बस भी ग्रीन इलेक्ट्रिक बस हमारे पास मुल्तान में नहीं आई। दावत देता हूँ कि आज ही चले मेरे साथ मुल्तान और कल जाके हम दौरा कर लेते हैं। यार वो फाइनेंस अपना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से पूछ लें कि क्या मुल्तान डिस्ट्रिक्ट को ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मिली है। अगर मिली है तो मैं अपने अल्फाज वापस भी लूँगा, उनसे माजरत भी करूँगा। जी, अली हैदर गिलानी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये बजट जो है वो अवाम दोस्त नहीं है। हमने अपनी तजावीज़ जो है वो हुकूमत के सामने रखी है। अगर उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो हम दोबारा जो है वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो करेंगे, फिर तय किया जाएगा कि पीपल्स पार्टी ने आगे क्या करना है। जी, मदद जो है वो कही, उसमें पंजाब ने ग्रेशियसली इस कौमी अमूर को, इन तीनों कौमी अमूर को सरअंजाम देने के लिए जो है वो एक ख़तीर रकम 560 अरब रुपए की एक ख़तीर रकम जो है वो वफाक को मुहैया की, जिसकी वजह से यकीनन हमें एक मुश्किल पेश आई अपना बजट जो है तरतीब देने के लिए। लेकिन मैं ये बात बताने में मुझे बहुत खुशी और फ़ख्र महसूस हो रहा है कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने इस जो एक चैलेंज है उसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, और अब जो पंजाब ने अपने ओन सोर्सेज हैं। पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो PRA है, जो हमारा पंजाब का रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, PRA ने पिछले साल से इस दफ़ा 34% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है, और अगले साल के लिए भी उनको एक बड़ा टारगेट दिया गया है। और मुझे उम्मीद है चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो है वो मुकम्मल तौर पर एक तो खुदा ताला की जो मदद है उस पर हमेशा से बिलीव करती हैं। दूसरी बात, उनका ये टास्क उन्होंने दिया है जो हमारी PRA है और हमारे जो रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले इदारे हैं कि उनको अपने सोर्सेज से जो है वो पैसे इकट्ठे करने हैं। जो चीफ़ मिनिस्टर के किसी इनिशिएटिव पे कोई कट नहीं लग रहा, चीफ़ मिनिस्टर का कोई इनिशिएटिव बंद नहीं होगा, कोई तरक्याती फ़ंड जो है वो तरक्याती बजट में जो है वो कमी नहीं होगी। हम अपने ओन सोर्सेज से हम ये तमाम चीफ़ मिनिस्टर साहबा का ये जो अज़्म है हम इसको पूरा करेंगे। ये बात भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जो फिगर्स अभी जो आपके सामने मौजूद हैं उसके अंदर भी अगर आप देखिए तो जो सेक्टोरल जो एलोकेशंस की गई हैं, सो उस सेक्टोरल एलोकेशंस में कहीं पर किसी भी डिपार्टमेंट को जो है वो ख़ास तौर पर तालीम और सेहत के, एग्रीकल्चर और सोशल सेक्टर को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो इस बजट में भी मिली है। चीफ मिनिस्टर का फोकस जो है वो सोशल सेक्टर के ऊपर भी था। सो किसी के ऊपर जो है वो जो उनकी एलोकेशंस जो हैं वो लास्ट ईयर थी उसी से जो है वो उसको मैच किया जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जैसे ही अब ये हॉर्मुज़ भी खुल रही है, उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में यकीनन कमी आएगी, उसका फ़ायदा जो है वो आम आबाद को पहुंचेगा, और जो महंगाई एक मसनूई महंगाई आई थी कुछ अरसे के लिए उसमें कमी आएगी। जो चीफ़ मिनिस्टर साहबा का एक विज़न होता है, एक हमेशा उनकी कोशिश होती है महंगाई में कमी के हवाले से, जो उन्होंने पिछले 2 साल में बड़ी मेहनत से अचीव भी की कि 2 साल में उन्होंने महंगाई को बढ़ने नहीं दिया पंजाब के अंदर, और इसीलिए जो आपने फिगर्स देखे महंगाई में कमी के उसमें पंजाब का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। सो इन तमाम हालात के अंदर ये एक मुतवाज़न टैक्स फ्री जो है वो बजट पेश किया गया है। हमने अपना टैक्स नेट बढ़ाने की बात की है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, लेकिन जो लोग टैक्स नहीं देते, जो बड़े बड़े कारोबारी हजरात हैं, कारोबारी इदारे हैं जो टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स देना पड़ेगा, और यकीनन टैक्स इकट्ठा करके ही जो है वो पंजाब के अवाम का जो हक़ है वो उनकी दहलीज़ पर पहले भी पहुँचाया है, इंशाल्लाह अगले साल भी पहुँचाएँगे। और जो PRA है उसने जिस तरह से एक बहुत अच्छा काम किया है, 34% उन्होंने जो है वो अचीव किया है, अगली दफ़ा उनको 55% से ज़्यादा की जो है वो टारगेट दिया गया है। इंशाल्लाह ताला उसको मीट करेंगे, और पंजाब अपने ओन रिसोर्सेज से जो है वो अपने तमाम जो CM के इनिशिएटिव्स हैं उसको कंप्लीट करेगा। जी, थैंक यू।
40 से 50 मिनट तक वो ऐवान में रही, लेकिन अगर अभी बजट तकरीर जो है वो जारी थी वो चली गई। उनकी तबीयत के बारे में काफ़ी लोगों का कंसर्न है, क्या वो मसरूफियत की वजह से जल्दी ऐवान से चली गई या वो अपनी तबीयत की वजह? देखिए, यकीनन उनकी अभी भाई मेजर सर्जरी हुई है और मेजर सर्जरी में 2 घंटे से ज़्यादा कैबिनेट का इजलास, जिसके अंदर भी वो 3 दफ़ा उठ के खड़ी होती थी, फिर वो बैठ जाती थी। इससे आप अंदाज़ा लगाइए, उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि आप जो है वो बीमारी की वजह से आप अगर बजट इजलास में ना भी आएँ तो ज़ाहिर बजट स्पीच वज़ीर ख़जाना ने करनी है, वो की जा सकती है, इसके प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है। उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी से भी खिताब किया, उन्होंने जो है वो मैक्सिमम जितना वो अपनी तबीयत के मुताबिक बैठ सकती थी वो बैठी और उसके बाद जो है वो ऐवान से तशरीफ़ ले गई। तो यकीनन अभी उन्होंने जिस पेस से काम वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, जो आपने मुलाहिज़ा फरमाया। वेलकम बैक। कराची के ज्वेलर्स FBI के खिलाफ सड़कों पर आ गए, तमाम सराफा बाजार बंद, शहर में रैली निकाली। रिजवान आलम रिपोर्ट करेंगे। FBR के छापों के खिलाफ कराची की सुनार एक हो गए। ऑल पाकिस्तान जेम एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन कासिम शिकारपुरी का इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के बाइकआउट का ऐलान। इल्जाम आयद किया कि FBR अपने रेवेन्यू शॉर्टफॉल का बोझ ताजरों पर जबरदस्ती डालना चाहता है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि FBR के अहलकार रिश्वत तलब करते हैं। पेशावर में ज्वेलर से मुबैना तौर पर 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी गई। हम तो टैक्स देना चाहते हैं लेकिन आपकी नाजायज डिमांड कबूल नहीं करेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने जिसको छोड़ा है उसको नहीं गिरफ्तार किया, आप फिर यहाँ नहीं रहेंगे। आपने अब पाकिस्तान के अंदर कहीं भी किसी भी दुकान को सील किया, कल या परसों या तरसों इंशाल्लाह हम फिर एक कॉल देंगे और पूरे पाकिस्तान लेवल पे कॉल होगी और पूरा पाकिस्तान बंद होगा इंशाल्लाह। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान जेम एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने POS निज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा इस कानून के खिलाफ आला अदलिया में दरख्वास्त दायर कर चुके हैं। मुल्कीर हड़ताल का हतमी फैसला तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद करेंगे। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। कराची में पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ नेशनल हाईवे पर एहतजाज, अतराफ की सड़कें रुकावटें लगाकर बंद कर दी गई। मजीद जानेंगे शहरियार साजिद से। शहरियार, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, पानी की अदम दस्तयाबी के वो इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है मेन नेशनल हाईवे मंजिल पंप पर, और इस वक्त खवातीन और मर्द की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा रही है। मंजिल पंप का इलाका हो, मस्जिद कॉलोनी का इलाका हो, सेक्टर 1 सेक्टर 2, कहीं पर भी 1 महीने से जो है वो पानी इनको नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से ये लोग जो है वो यहाँ पर जमा हुए, इनसे बात भी करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे गर्मी के दिन है, नहाने धोने के लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं। आप लोग खुद सोचें, गर्मियों में क्या बंदा 2 जग पानी नहीं डाल सकता अपने जिस्म में, बच्चों के जिस्म में? बहुत सारों के पास गए लेकिन हमारा मसला हल नहीं हुआ। इनका मुतालबा है कि जब तक सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग इसी तरह से रोड बंद करके जो है एहतजाज करते रहेंगे। G7 इजलास में भी फुटबॉल का बुखार सर चढ़ कर बोलने लगा। मीटिंग के दौरान जर्मन चांसलर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जर्मनी की जर्सी का तोहफा दिया, जिस पर ट्रंप लिखा था और 47 नंबर तहरीर था। शर्ट मिलने पर सदर ट्रंप ने खुशी का इजहार किया।